Good morning, class 10th. Today we will start a new chapter in the economic section. The name of the chapter is development. So we will talk about development today. So all of you are aware of the fact that everybody wants development. When you go into the elections, when you cast your vote in the elections, the first and the foremost requirement of you from your particular representative is that that particular representative gives you some of the development, like construction of the roads, like good sanitation facilities, construction of the house, construction of the sewage facilities. So all of these are the needs of a people, and they all are related to the development of a particular place. And when we take the perspective of the country, development is related to the well-maintained roads, you can say that all the necessary facilities which should be available in the country, if they are available in the country, we can say that that particular country is a developed country. For example, America, why it is known as a developed country? Because America has all the facilities which are required by the people of that country. So development is directly related to the economic benefit of the people, economic benefit. If a particular country is getting the economic benefit, then that particular country can be considered as a developed country. Okay. So what is right now the development of a nation is directly related to the industrial development of the nation. If a particular country is getting industrially developed, then that particular country can be considered as a developed country. As all of you know that USA has a large number of industries, large number of modern industries right now. That is why it is considered as a developed country. China, America, Russia, all of these countries have large amount of industrial centers. That is why. Development is a process. Development is a process. It is a process. It goes on smoothly. It starts from a word go and then it continues and develop. For example, we can take the example of the Stone Age. What happened in the Stone Age? In the Stone Age, the humans do not know how to do agriculture, they do not know how to create fire, they were not ready to cook their food, they didn't have the knowledge of the fire. But later on, when they progressed, they had known the development of the fire. After that, they started doing agriculture and they continuously developed. Okay. So similar is the process for the humans. Nowadays, the development is directly related to the economic development of the country. Now, every person of the country has different development goals. For example, if a particular person is a rickshaw puller, so the development goal for a rickshaw puller, what is the development goal for a rickshaw puller? The development goal for a rickshaw puller is that in future he will get a good auto rickshaw. For example, एक साइकिल वाला जो रिक्शा होता है आपने देखा होगा, अगर कोई साइकिल वाला रिक्शा चलाता तो उसके लिए विकास का क्या मापदंड है? उसके लिए विकास का मापदंड ये कि उसे आगे चल के अगर ऑटो रिक्शा मिल जाती तो वो उसका विकास है, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति कहीं पे काम करता है तो उसका विकास क्या है? अगर वो किसी लोअर पोस्ट पे तो हायर पोस्ट पे चला जाए, उसकी इनकम बढ़ जाए तो उसका विकास ये, ठीक। तो डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। सबके अपने विकास के अलग अलग आयाम होते, अलग अलग मापदंड होते, ठीक। तो हम लोग बात करेंगे। तो अ गर्ल डिजायर्स इक्वल्स, अब गर्ल और बॉय में क्या, अब गर्ल को फैमिली में उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती या उतनी ज़्यादा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, ठीक। तो गर्ल के लिए डेवलपमेंट गोल क्या है कि उसे
इक्वल स्टेटस सोसाइटी में मिल जाए। जैसे कोई गर्ल किसी जगह पर वर्क कर रही है तो उसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं मिलता है, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल है कि वो इक्वल पे पाए, उसको मैन के साथ इक्वली ट्रीट किया जाए, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए। तो और मैन के लिए क्या है, मैन के लिए क्या है कि उसे अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए या अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छी वाइफ मिल जाए, बहुत सारे डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उसके। ठीक है, अब हम बात करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं आपकी फुलफिल कैसे होंगी। अगर किसी को कार खरीदनी है और कार वाले को अगर हेलीकॉप्टर खरीदना है, हेलीकॉप्टर वाले को अगर एरोप्लेन खरीदना है, तो उसके लिए अलग अलग, लेकिन उसके लिए एक चीज कॉमन होती है, वो है इनकम या मनी। मनी को इनकम कहा जाएगा। ठीक, अगर किसी के पास मनी अच्छी है तो ये सारे डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकता है। ठीक, लेकिन क्या इनकम ही आपके सारे डेवलपमेंट को फुलफिल कर सकती है, आपके जीवन को पूरी तरीके से सुखी बना सकती है? नहीं। क्या इनकम ही हर चीज का पैमाना है? नहीं। हेल्थ, एजुकेशन, ये सब भी तो कुछ मायने रखते हैं। अच्छा, इनकम कोई व्यक्ति अच्छी कैसे कमा सकता है अगर उसके पास अच्छी एजुकेशन ना हो? क्यों कुछ लोगों को रिक्शा पुलिस का काम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं, दे आर नॉट दैट मच लिटरेट, दैट इज व्हाई दे हैव टू डू such type of jobs which do not give them so much income. And if a particular person is highly educated, he will get a very good efficient job and he will get a large amount of income, so his development would be greater than the development of the rickshaw puller. So तो एक तरीके से कह सकते हैं इनकम भी किस पर डिपेंड कर रही है? दूसरे क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है, हेल्थ और एजुकेशन। अब भाई एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ नहीं है आपके पास, तो आप कैसे वर्क करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग हियर, अगर मेरी हेल्थ खराब हो तो क्या मैं बोल पाऊंगा? अगर मुझे फीवर हो, मुझे उल्टियाँ आ रही हो, तो क्या मैं ये सारे काम कर पाऊंगा? नहीं। तो कोई भी वर्क करने के लिए हेल्थ और एजुकेशन, और जब तक वर्क नहीं करेंगे हम तो इनकम हमारी जनरेट नहीं। तो हेल्थ और एजुकेशन और इनकम तीनों एक दूसरे में इंटर रिलेटेड है। तो सिर्फ इनकम ही एक गोल नहीं होता है। हेल्थ अच्छी रखना, एजुकेशन हमारी अच्छी रखना, ये दोनों। सोसाइटी तब तक नहीं प्रोग्रेस कर सकती जब तक सोसाइटी हेल्दी एजुकेटेड हो। ठीक, मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब दिया हुआ है, प्रोवर्ब मतलब लोकोक्ति दी हुई है, मैन डज नॉट लिव ऑन अ ब्रेड अलोन, मतलब मानव सिर्फ रोटी के ऊपर जीवित नहीं रहता, उसको इमोशनल भी उसकी कुछ जरूरतें होती हैं। अगर अच्छे रिलेटिव्स हों, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, ये सब चीजें भी मनुष्य की लाइफ में उतनी इंपॉर्टेंस रखती है। तो अगर उसने पैसे खूब कमा लिए और उसके पास पैसे, फिर उसके पास कोई रिश्तेदार ना हो, नातेदार ना हो, तो फिर वो व्यक्ति क्या सुखी रहेगा? अकेले वो क्या उस पैसे को कमा के क्या करेगा? ठीक, तो इसीलिए सिर्फ इनकम ही मनुष्य के जीवन के डेवलपमेंट गोल नहीं है। अब हम बात करेंगे अदर क्राइटेरियाज के बारे में। अब हम उसी अदर क्राइटेरियाज के बारे में बात करेंगे, क्या क्या अदर क्राइटेरियाज, उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, हाँ, तो कौन कौन से क्राइटेरिया मैंने आपको बताया? हेल्थ, एजुकेशन। अब हेल्थ, अगर हेल्थ अच्छी ना रहे, अगर हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर ना मिले, अगर हमें प्रदूषित पानी मिले तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये भी एक डेवलपमेंट का क्राइटेरिया होता है। सैनिटेशन, अगर गंदगी आसपास रहेगी, सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं होंगी, तो भी हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, इक्वल ट्रीटमेंट ना मिले, अगर हमें समाज में इज्जत ना दी जाए, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, जैसे मान लीजिए आज़ादी से पहले जो आपके बैकवर्ड क्लासेस थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उन्हें पब्लिक वेल से पानी नहीं दिया जाता था, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं यूज़ करने दिए जाते थे, और अपर कास्ट के जो स्कूल्स होते थे उसमें लोअर कास्ट के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता। तो इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन अगर किया जाएगा तो ये भी तो एक डेवलपमेंट गोल है कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले समाज में। अगर हमें समाज में इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है तो भी हमारा एक विकास होगा। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को अगर समाज में इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है तो उनका विकास हुआ, वो भी तो विकास का एक मामला है। ठीक,
फ्रीडम मिले, अगर किसी को जबरदस्ती पराधीन रखा जाए, अगर इंडिया आज़ाद हुआ है तो वो भी तो इंडिया ने कुछ डेवलपमेंट किया है। इंडिया पहले गुलाम था, अब गुलामी से आज़ादी की सांस ले रहा है, आज़ादी की सांस लिया तभी तो अपना विकास कर पाया। तो फ्रीडम भी है, हर व्यक्तिगत फ्रीडम भी जरूरी है और पूरी सामूहिक फ्रीडम भी जरूरी है। तो फ्रीडम मिल रही है तो फ्रीडम भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अगर कोई व्यक्ति बहुत से दिनों तक गुलामी जंजीरों में जकड़ा था तो अगर वो आज़ादी पा गया है तो हमने उसमें कुछ विकास किया है। और उसके अलावा सिक्योरिटी भी, अगर असुरक्षित माहौल में लोग रह रहे हैं और उन्हें सुरक्षा मिल जाती है, वो सुरक्षित हो जाते हैं, तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा विकास है। ठीक, वो ऐसी जगह पे रहते हैं या ऐसी जगह पर सुरक्षा का माहौल दे दिया जाता है तो वो, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ फॉर एग्जाम्पल, ठीक, कोरोना फैला हुआ तो यदि हमारे एरिया में कोरोना का रोकथाम कर दिया जाए, कोरोना हमारे एरिया में ना फैल पाए, सरकार पूरी तरीके से इसका रोकथाम कर ले, तो अगर हम कोरोना से बच जाते हैं तो वो भी हमारे लिए डेवलपमेंट, हम पीछे जाने से बच गए। अगर कोरोना कंटिन्यू करेगा तो हमारे देश का आर्थिक नुकसान भी होगा। ठीक, तो अगर हम लोग इससे बचाव कर लेते तो वो भी हमारे लिए विकास का मापदंड हो गया। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, अगर हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हमें बेइज्जती हमारी की जाती, हम वर्क कर रहे हैं कहीं पे और हमारे साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। इक्वल ट्रीटमेंट की बात अलग है, इक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, लेकिन समय समय पे हमें जलील किया जा रहा है। तो अगर रिस्पेक्ट हमें नहीं दी जा रही, हमारे बच्चे अगर हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते तो वो भी एक तरीके से क्या है, हमारा डेवलपमेंट नहीं है, हम डेवलपमेंट पीछे जा रहे हैं। हम अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक तरीके से हमारा डेवलपमेंट आगे नहीं हो रहा। 4 साल से पढ़ाने के बावजूद भी अगर बच्चे हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो हमने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। हम आज भी वहीं खड़े हैं, कल भी वहीं खड़े हैं, लेकिन अगर हम 4 साल में हमने अपनी इज्जत बनाई है, बच्चों ने हमारी पढ़ाई को अच्छा समझा है, हमें एज अ टीचर अच्छा समझते हैं, तो हमने वास्तविकता में कुछ कमाया है, वो भी एक तरीके की कमाई है। ठीक, कलेक्टिव एफर्ट्स आर नीडेड टू प्रोवाइड पब्लिक, लेकिन ये सारी फैसिलिटीज ऐसे नहीं अकेले ही कोई नहीं इस चीजों को इरेडिकेट कर सकता। उसके लिए जरूरी क्या है, ये सारी चीजें पब्लिक वेलफेयर, ये सारी चीजें जो है वो किसी एक व्यक्ति के डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा तो सारी सोसाइटी को मिलेगा, हेल्थ अगर अच्छी होगी तो सारी सोसाइटी, अगर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज होंगी, अच्छी वैक्सीनेशन होगी, बड़ी बड़ी बीमारियों की हमारे पास दवाइयाँ होंगी, तो उससे सारी कम्युनिटी को फायदा हो, किसी व्यक्ति को फायदा नहीं हो। ठीक, रिस्पेक्ट मिलेगी किसी कम्युनिटी को मिलेगी। रिस्पेक्ट तो व्यक्तिगत भी होती है, लेकिन रिस्पेक्ट जो है वो सामूहिक भी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड एवरेज इनकम इन महाराष्ट्र हैज मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला, बट इट लैक्स बिहाइंड। देखिए, अब बहुत अच्छा केस इसमें किया है महाराष्ट्र और केरला। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र जो है वो हमारे देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। दैट मीन्स वहां पे सारी फैसिलिटीज हैं, अच्छी रोड्स, अच्छी इंडस्ट्रीज, और अच्छा आईटी सेंटर है, और जो आपका बॉलीवुड इंडस्ट्री भी आपकी महाराष्ट्र से ही रन करती है। तो हर तरह की चीजें महाराष्ट्र में अवेलेबल है, और इसीलिए वहां की पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, इसको बोलते हैं एवरेज इनकम पर पर्सन पर ईयर। इसलिए इसको क्या हिंदी में कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। प्रति वर्ष एक औसतन आय प्रति व्यक्ति की जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। कैसे निकालते हैं इसको, टोटल इनकम जो हमारे देश की होगी उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना। सिंपल सा एवरेज निकालने का जो मैथ्स में आपने सीखा है, क्या सीखा है, मान लीजिए मैथ्स में आपने देखा ना 5 लोग, मान लीजिए 40 नंबर है 5 नंबर, तो हम क्या करते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, sum of observations upon total number of
ये तो एवरेज निकालने का तरीका है। तो ये पर कैपिटा इनकम है क्या? एवरेज इनकम ही तो है। एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे? पर कैपिटा इनकम हम कैसे निकालेंगे? टोटल इनकम जो देश की होगी, टोटल इनकम कैसे पता लगेगी? सब लोगों की इनकम को ऐड कर दिया जाए तो टोटल इनकम आ जाएगी अपॉन टोटल जो पॉपुलेशन इंडिया की। मान लीजिए फॉर एग्जांपल टोटल इनकम इंडिया की 1000 रुपए, हालांकि ऐसा होगा नहीं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि 1000 रुपए पूरे देश की इनकम, ठीक, सारे लोगों की इनकम मिला दिया और पूरे देश में 100 लोग रहते हैं, ठीक, तो एवरेज इनकम क्या निकलेगी? एवरेज इनकम क्या निकलेगी? 10 रुपए। ये क्या हो जाएगी? आपकी पर कैपिटा इनकम हो जाएगी। ये मजाक की बात है लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है। मैं बस ये आपको क्लियर कर, पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र की ज्यादा है, लेकिन एक विरोधाभास क्या है कि केरला का डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा है। केरला इज मोर डेवलप्ड देन महाराष्ट्र। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम या सिर्फ इनकम ही क्राइटेरिया नहीं है डेवलपमेंट का। महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम अच्छे होते हुए भी महाराष्ट्र ज्यादा डेवलप नहीं केरला। क्यों? क्योंकि केरला की एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा है। एजुकेशन लेवल केरला का, एजुकेशन और हेल्थ, इन दो मापदंडों पे केरला ज्यादा अच्छा राज्य है। केरला की आपको मालूम है लिटरेसी रेट क्या है? 92%, और यहाँ फीमेल लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, और यहाँ पे फीमेल सेक्स रेशियो भी बहुत अच्छा है, 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है गर्ल्स को। तो ये सारी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है यहाँ पर, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बहुत जोर दिया जाता है। ये सारी हेल्थ एजुकेशन, ये सारी चीजें किसके डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है? ह्यूमंस। एजुकेशन कौन गेन करेगा? ह्यूमन। हेल्थ किसकी अच्छी होगी? ह्यूमन की। यानी किस चीज पे एचआरडी पे ध्यान दिया जा रहा है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस वजह से केरला ज्यादा आगे निकल जा रहा है। हालांकि पर कैपिटा इनकम थोड़ी लो है महाराष्ट्र, लेकिन तब भी बाकी एस्पेक्ट में उसने कवर किया। इस वजह से अगर ओवरऑल देखा जाए तो केरला इज मोर डेवलप्ड देन महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या क्लियर कर रहे थे? यहाँ पर क्लियर कर रहे थे कि इनकम इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू डिसाइड द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और अ पर्टिकुलर स्टेट और अ पर्टिकुलर पर्सन। ओके, अब देखिए बिहार की स्थिति। बिहार की पर कैपिटा इनकम बहुत बेकार है। जैसे महाराष्ट्र में बताते हैं आपको, महाराष्ट्र वैसे आपको बुक में डेटा दिया हुआ है, महाराष्ट्र, केरला और बिहार हम कंपेयर करते हैं तीनों स्टेट्स को। महाराष्ट्र केरला तो चलो अच्छे स्तर पे, लेकिन बिहार बहुत ही घटिया स्तर पे। जैसे महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम 1,17,000 रुपए, केरला की 1,03,000 रुपए, और वही बिहार की 31,000 रुपए। देखिए कितना नीचे मिले। क्या बिहार के पास पॉपुलेशन नहीं है? क्या बिहार के पास टेरिटरी नहीं है बड़ी? है। फिर क्यों बिहार पीछे? क्योंकि बिहार के पास एक चीज की कमी है, वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये चीज बिहार में नहीं हो रही है अच्छे से। महाराष्ट्र में भी हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में केरला से अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि महाराष्ट्र में भी गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने देखा है कि भारत के सबसे बड़े स्लम्स जो है वो महाराष्ट्र में, यानी बहुत सारे पुअर अभी भी महाराष्ट्र में इलिटरेट है, उन्हें अच्छी जॉब्स नहीं है। इस वजह से ओवरऑल जो पर कैपिटा इनकम है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है इस वजह से, और टेरिटरी भी बहुत बड़ी है महाराष्ट्र की, इस वजह से उसकी पर कैपिटा इनकम जरूर ज्यादा है, लेकिन बाकी फैसिलिटीज में महाराष्ट्र लैग करता है। वही केरला थोड़ा छोटा राज्य जरूर है, लेकिन केरला बाकी सारी फैसिलिटीज में अच्छा है, ठीक। अब वही बिहार जो है बड़ा राज्य भी है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो है इलिटरेट। या क्या प्राइमरी एक्टिविटीज करती है। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है? एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, ये सब आपकी क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज। तो एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग में ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो इन सब सेक्टर्स में
ज़्यादा एजुकेशन की तो रिक्वायरमेंट होती नहीं। इस वजह से ये सारे सेक्टर उतना डेवलपमेंट थोड़ी दे पाएंगे। प्राइमरी एक्टिविटी कभी भी देश को डेवलप नहीं कर पाएगी आज के समय में। और आज क्योंकि आज का जो समय है वो क्या है, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है। आज की सोसाइटी क्या है, इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। तो जब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक किसी राज्य का डेवलपमेंट नहीं होगा। यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, यानी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट और उसके साथ साथ सर्विसेज भी अच्छी होनी चाहिए, जो बिहार में नहीं। बिहार में प्राइमरी एक्टिविटीज ज़्यादा हो रही, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज नहीं हो रही। इस वजह से ज़्यादातर पॉपुलेशन वहाँ की उतनी ज़्यादा लिटरेट ना होने की वजह से, इस वजह से वहाँ का पर कैपिटा इनकम और हेल्थ की फैसिलिटीज भी अच्छी नहीं है और एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। तो ये दो मेन क्राइटेरिया बिहार लैक करने की वजह से उसकी पर कैपिटा इनकम बहुत लो। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।